also rock, one in the middle. So this is a forward. I will tell you forward, so everyone has to do equally. Otherwise, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं. These two lines have inspired generations and continue to do so. जब अंग्रेज़ यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर चले गए तो वो छोड़ गए दो रियासतें, इंडिया और पाकिस्तान. Pakistan is the most interesting geographical region as it is home to the meeting point of three mountain ranges and the second largest mountain of the world, K2. It consists of deserts, extremely fertile land, and a 1,000-kilometer coastline. However, the northern areas of Pakistan are the most beautiful places on earth, and the world has only just started to notice. Daud Global Foundation and Al Baraka Bank have partnered up to bring 9 university students from Karachi, the south end of Pakistan, to Skardu and Hunza, the most beautiful cities of North Pakistan. Everyone, Their aim is to let these students explore the local culture there and experience everything that the roof of Pakistan has to offer. First of all, I personally, and on behalf of all my faculty members and administrative staff, welcome you at University of Pakistan. Deciding between Dawood Global Foundation Karachi and University of Pakistan signed today at 12 on the 12th of. After we reached Skardu, we went straight to University of Baltistan and saw their campus and interacted with their faculty. This is a trip focused on education and fun together. We then stopped beside the road to see the sunset, and this is the beauty of Skardu. No matter where you stop, it will always be beautiful. इसको क्या करना है? आप ये बना माउंटेन्स और ये लैंडस्केप्स फिर यहाँ का कल्चर अपनी चलतियाँ तो उधर भी हाँ फिर आना बस आप sat on top of the bus. You've seen the bus? I climbed on top of the bus and just sat there and did little videos, relaxed. That's wonderful. Why do but we're in the mountains? Yeah. Why not enjoy life? we really appreciate that you just bring up these all young students here, you know. Oh, the Urdu poet can Yeah. teach Urdu poetry for 3 months, you know. Yeah, perfect. You said resource is what you need. Yeah. Gilgit-Baltistan has a diverse culture. There are so many heritage sites and really diverse culture. There are a lot of local events, fields and peace-loving people around us. So there are lots of opportunity for partnership and collaborative. We then had dinner with the faculty of University of Baltistan, who shared many interesting stories. Emergence of life started from these mountains. And then when we see in the remains, in the traces of civilization, we can find Zoroastrian symbols, we can find Buddhism, Bodhism, Jainism, Shamanism, even Phariseeism. We have found Christianity, huge cross has been discovered. Judaism, the David star has been discovered on many rocks. So there are many civilizations which are preserved on rock carvings, in form of rock carvings
are present here and there in Baltistan. Our Urdu poet Farzan shared a few lines and then we called it a day. ये अभी जब हम रास्ते में रुके थे थोड़ी स्केचिंग वगैरह करने तो चंद चीजें लिखी हैं। कभी वो बात हुस्न की तो महफिल में तेरा जिक्र गूंजता है। कभी वो बात हुस्न की तो महफिल में तेरा जिक्र गूंजता है हर आँख में तेरा मंजर मगर खामोश है जुबान है हर आँख में तेरा मंजर मगर खामोश है जुबान। कोई किसी को क्या कहे किसी से क्या शिकवा करे कोई किसी को क्या कहे किसी से क्या शिकवा करे जब कोई चीज दिल को भा जाए फिर क्या दिल और क्या जान ये तो खैर मैंने अभी लिखे जो जरा माहौल के मुनासिबत के हिसाब से अगर तो मेरा जरा इंटरनेट थोड़ा साथ दे दे मैं कुछ अपनी पुरानी लिखी चीजें सुना देता हूँ। जिन यारों के लिए हम जान देते थे आज वही हमारे जनाजे पर पूछते फिर रहे हैं नमाज में और कितनी देर है। जिन यारों के लिए हम जान देते थे आज वही हमारे जनाजे पर पूछते फिर रहे हैं नमाज में और कितनी देर है। ये सारा कमाल दर्द का है ये जो तुम दर बदर फिर रहे हो ये सारा कमाल दर्द का है। ये जो तुम हम दीवानों का दिल तोड़ रहे हो ये सारा कमाल दर्द का है। तुम जो हमसे पूछते हो ये चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी ये सारा कमाल दर्द का है। गाड़ी तक गए थे अभी इससे आगे जाएंगे। The next day, we packed our bags and had local breakfast. The people there are very, very hospitable towards us Karachiites, and we did not expect that. Then we started our journey towards Bashu Valley. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी गाड़ी में जा रहे हैं। पहले जाएंगे सोक वैली फिर उसके बाद जाएंगे अपर कचूरा फिर सिंगरेला फिर बाशु फिर उसके बाद बाशु बहुत क्या नाम है आपका? क्या बना रहे हैं शाहिद भाई आज? ये ग्रिल बना रहे हैं, फिश, ट्रोट फिश के। अच्छा, तो ये कहाँ से लाते हैं ट्राउट फिश को? ये दरिया से पकड़ते हैं। बाकी इसका टेस्ट के बारे में बताएं कैसा होता है? टेस्ट ये दुनिया का बहुत टेस्टी है। मैंने सुना है ये मीठे पानी में ही पाई जाती है। जी जी। और इसकी ये खासियत है ये दरिया में अपोजिट चलती है। अच्छा, मतलब दरिया का फ्लो यूँ है तो ये यूँ जा रही है। अल्लाह की कुदरत है। अगर एक बात करें तो क्या हिसाब है इनका, क्या किलो? ये ग्रिल 4000 रुपये के जी है। बाकी फ्राई नहीं, फ्राई 4000 रुपये के जी है, ग्रिल 5000 रुपये के जी है। इतनी महंगी है, मतलब इसको इतना मेहनत है इसको पकड़ने की। तो ये मेरे ख्याल से होती भी कम होगी दरिया में, इतनी होती भी नहीं होगी। कोई भी सॉन्ग अभी हम गाड़ी में बीच गाने सुन रहे थे, आप वो पकड़ो उसके अराउंड फिर आप खेलो। अपनी पहली लाइन खेली अच्छा, फिर आप राइमिंग वर्ड सोचते हो। We hit a roadblock on the way.
The wooden bridge that we needed to cross was slightly damaged, and after waiting an hour for the locals to fix it, we finally got across it, but we had missed the sunset unfortunately. दाल बताऊँ आपको दाल कहाँ गई? ये रही आने दो आने दो चाहिए हाँ आ जाओ Happy birthday to you. Happy birthday to you. लेट ला बल्कि देरी रख Happy birthday to you. आज़ादी मुबारक. वाला है। ये पूरा इलाका हमारा ही है, तो आप लोगों को यहाँ आकर मज़ा आया होगा। इलाके का नाम बशो वैली है। ये नज़ारा होटल हमारे ही है, नज़ारा होटल। और बाकी तो आपने सब देखा है, इस साइड पे जंगल है, इस साइड पे पहाड़ है, ऊपर भी आबादी है, खूबसूरत जगह है। इस नाले में जो है, ये नाला जो है इधर पीछे ग्लेशियर है बड़ा, यहाँ से जाकर आपको अस्तूर भी आते हैं, इस साइड पे शगरथाम भी आते हैं, दोसाई भी आते हैं, इस साइड से बिलमिक भी जा सकते हैं। तो ये याक वगैरह जो एनिमल्स है वो इस वक्त जो है ग्लेशियर के करीब ही है, इधर नज़र नहीं आएगा वो इस वक्त। सर्दियों में वो वापस नीचे आते हैं, अभी ऊपर ग्लेशियर के नज़दीक ही है। तो बाकी ये इधर हमारा जो है आबादी है सामने, इधर हम ये फसल काश करते हैं, घास काटते हैं इधर से। बाकी किस चीज़ की फसल काश करते हैं? यहाँ पे जौ की, आलू की, बाकी घास होते हैं हमारा जो सर्दियों में हम जमा करते हैं ना, घास अपने जानवर के लिए घास जमा करते हैं। After witnessing the beautiful sunrise, we journeyed downwards back towards Skardu. After a long and arduous journey, we reached Skardu. But then we had to start our journey towards an even higher place, the plains of Diosai. We stopped at Satpara Lake and we took some pictures there. It was one of the most beautiful lakes we have ever seen. Diosai is known as the land of the giants. The never-ending plains were evidence of that. Diosai was at a massive 13,497 feet above sea level, the second highest plateau in the world. रहीम, शुक्रिया मैडम। मैं इस दिवसय का राइट होल्डर भी हूँ और इस दिवसय का चेयरमैन भी हूँ और इस पॉइंट का मालिक भी हूँ, ये जो कैंपिंग होटल चल रहा है। तो बेसिकली ये जो दिवसय है ये अस्तूर को मिला के गिलगित, ये पार्ट ऑफ कश्मीर है, ये कश्मीर का हिस्सा है कदीम ज़माने के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो अब आपने सवाल पूछा है कि दिवसय के बारे में मुझे मालूमात दे दें, तो मालूमात मेरे मुताबिक ये है, ये 3300 स्क्वायर किलोमीटर पे ये मुहित है। ये इलाका जो है ना, इसका दायरा जो है 3300 किलोमीटर पर है। इसके अंदर ब्राउन बियर 2022 के शुमारी के मुताबिक 77 हैं इसमें नर भी है और मादी भी है, लेकिन इनकी लिमिट पूरी पता नहीं है कि मादी कितनी है नर कितनी है। और इसके अंदर जो है 464 किस्म के जो है फूल पाए जाते हैं और जड़ी बूटियाँ भी हैं इसमें, और उसके अलावा नायाब किस्म के परिंदे भी हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। हिमालयन आइबेक्स भी है और स्नो लिपर्ड भी है, ब्राउन मरमेड भी है, और ये चीज़ें जो है ना इस नेशनल पार्क के अंदर ये पाई जाती हैं। और आगे आप मुझसे पूछेंगे मज़ीद कोई चीज़ तो मैं बता दूंगा आपको। After camping for 2 days straight, we headed back to Skardu to get some rest. However, there were heavy rains on the way, and we decided to go to Hunza the very next morning.
has been on the economic growth. Economic growth, yes. And the other two parts have been majorly ignored. Ignored, of course. We have on-plan construction across Hunza. Very soon, Hunza will become like Murray. And like that, we have a lot of sources for energy. So which subject you are going to opt? We have opted for marketing with a combination of supply chain and sales. We are going to introduce hard sales first, and then आप लोग भी कर सकते हैं. We can have a small ice breaking activity. यहाँ पे हम लोग कुछ एक दूसरे से थोड़े weird questions भी पूछ सकते हैं, just to get comfortable and all. And then आप लोग हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं. हम लोग आपके बारे में बहुत इंटरेस्टेड हैं जानने में कि आप लोग की कैंपस लाइफ कैसी है या यहाँ पे लोकल लाइफ किस तरह की है, तो हम उसके बारे में थोड़ा पूछेंगे. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में जो मेरा ईयर है वो फाइनल है, मैं 7th सेमेस्टर का हूँ. पैशन मेरा ये है कि मैं CSS करना चाहती हूँ फ्यूचर. जैसे ये मेरा स्टडीज़ ख़त्म होंगे उसके बाद. और look at it, what's unique about you that, for example, I would hire you, right? For example, like me and Farzan, we run a digital agency. उसके अंदर what attracts us is how a person markets themselves. सही है? सारे जो लोकल बिजनेस हैं यहाँ के वो इंस्टाग्राम पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको अगर आप डायरेक्ट DM करके भी अपने पोर्टफोलियोज जैसे आपने बताया वो आप शेयर भी करें ना, तो वो लोग वेट में होते हैं, मतलब लिटरली कि उनको अगर कोई खुद से ऑफर करे, क्योंकि एक आप एजेंसी को अप्रोच करते हो और एक आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हो, तो वो हर कंपनी जो होती है वो प्रेफर करती है कि इंडिविजुअल वो अपनी टीम बनाए. तो आप तरह के जो लोग होते हैं जो रिमोट लेवल पे अपना इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं. लिंक्डइन पे जहाँ तक हमने बात करी ना, लिंक्डइन पे आप एक और चीज़ ये कर सकते हैं, जैसे हम लोग अपनी जॉब पे करते हैं, हम लोग कंपनी के प्रपोजल शेयर करते हैं. क्या बता कुछ कह रहा? नहीं. वालेकुम अस्सलाम भाई. क्या हाल है भैया? अल्लाह का बड़ा करम है. क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान है. शान भाई, अपना तारुफ करवाएं, कहाँ से हैं आप? भाई मैं लाहौर से हूँ. यहाँ पे मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया भाई है बारबेक्यू का. मेरे पास यॉर्क बारबेक्यू होता है, चिकन बारबेक्यू होता है. तो मतलब आपने यहाँ शुरू कैसे किया? मतलब क्या लाहौर से आप होकर आपने लाहौर में खाना बनाना सीखा? लाहौर में हमारी है 3 दुकानें चमन टिक्का के नाम से. अच्छा, फिर? तो बड़े भाई पुराना काम है हमारा, बचपन से मैं ही जानता हूँ इस काम को. घरेलू काम है, 5 भाई यही काम करते हैं. तो यहाँ कैसा मूड हुआ कि यार यहाँ पे यार सैर करने आया था मैं बाइक पे. फिर अच्छा. मुझे ऑफ़र हुई कि यहाँ पे आप काम करें इसी होटल पे. तो फिर घर के 1 साल बाद उसके घर के काफ़ी आज चेंज हो गए. फिर मैं यहाँ पे निकला हूँ, तो यहाँ पे मैंने पहले 2 साल जॉब्स की है, अब अपना काम शुरू किया था. तो शेफ़ आए थे बाइक पे, मतलब खाने वाने चख रहे थे? हाँ जी. मैं भी खुद शेफ़ हूँ. पहले एक ग्रुप शॉट. चलो कॉपी है. शेख आ जाए आ जाए. नहीं आ रहा है. अच्छा, आप लोगों ने सामने आना है. ठीक है. खातून वो यहाँ लेफ्ट साइड पे बैठती है, मर्द राइट साइड पे बैठता है, बीच में फिर कुकिंग एरिया. पुराने ज़माने में जब आग जलाते थे ये धुएं की वजह से ब्लैक हो गई है. 5 पिलर का जो कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 4 5 पंजतने सब हो रहा है बस. ठीक है, सब हो रहा है. टेंशन नहीं, आप लोगों के लिए ये हैंडीक्राफ्ट है यहाँ के. वो क्या है? वो चोगा है यार. वो हमारे ज़माने के अभी आप जाके वहाँ देखोगे ना, बादशाहों के पड़े हुए शीशे के अंदर हल्दी पे
शादी के कपड़े पड़े हुए हैं तो अभी 700-800 या 900 साल पुराने उन्होंने संभाल के रखे हैं ना, ये अभी हिस्ट्री है। ये सब अच्छा वो उससे बन गया वो हाथ का काम है। हाँ सब हाथ का सब हाथ का। ये मशीन है उसकी। हाँ ये लूम मशीन। बयान बाहर आ जाओ। मैम पिक्चर्स कहीं नहीं ये की बचा अच्छा ये बताया आपको यार बात सुनो, इसको कहते हैं गन्स। ये शेल्फ टाइप के हैं। अब तो मॉडर्न दौर में ये चीज़ें तो नहीं है, लेकिन पुराने लोग जो रहते थे ना 900 साल की पुरानी बात है, तो उनका रहने का स्टाइल ये था। ठीक है, आगे उन्होंने वो बताया स्टोरेज एरिया देख लिया आपने। सबसे पहले आप सबको खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। ये कोरगा कारपेट सेंटर जो 1998 में स्टार्ट हुआ था। 98 में हमने ट्रेनिंग लिया था। कारो हमारे एक लोकल NGO है, ट्राक्रोम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ट्रेंड किया था 30 ख़वातीन को कारपेट वीविंग की, थ्रेड डाई की और डिज़ाइनिंग की। ट्रेनर्स हमारे 4 सेंटर हुंजा के थे और एक अफ़गानिस्तान के। 5 साल हमने कारो के साथ काम किया, उसके बाद उन्होंने हमें हैंड ओवर किया। अभी हम ख़वातीन ये खुद चला रहे हैं यहाँ पे। अभी हम कारपेट वीविंग का काम यहीं पे करते हैं। बाकी जो छोटे प्रोडक्ट्स है, कैप्स है, बैग्स है, वॉलेट्स हैं, ये चीज़ें फिर ख़वातीन घरों में बनाती और हमारे पास लाती हैं। कारपेट वीविंग में इस साइज़ में तकरीबन हमें 15 दिन लग जाते हैं। ये 1 by 1 पीस में 15 दिन लगते हैं। It takes 15 days to complete this. You can touch it, you can feel it, pass it around. इनमें फिर 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं एक हाथों में। It's beautiful. This is a beautiful और piece. जो बड़े पीस है इस तरह के, इनमें फिर तकरीबन 5 से 6 महीने लग जाते हैं। एक कारपेट 2 ख़वातीन इस पे काम करते हैं जी। ये सुमक है, ये कारपेट है। सुमक जो है इसमें सिर्फ उंगलियों से उसको घुमाते हुए करना होता है, नोट्स डालते हैं। और कारपेट में फिर नीडल है जिससे हम नोट डालते हैं और काटते हैं। इसकी फिर बाद में ट्रिमिंग होती है। ट्रिमिंग के बाद फिर This is a very nice one for your homes. Okay, it's really nice. बात ये कि हम एग्जीबिशंस अटेंड करते हैं कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में हम जाते हैं, एक्सपो में और विरसा, वहाँ पे फिर कुछ हमारी प्रोडक्ट सेल होती है। बाकी जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो यहीं से ले लेते हैं हमसे। शॉप्स में मुमकिन में ये जिस घर में आप इस वक्त खड़े हैं इसको पामीरियन हाउस कहते हैं। हमारे यहाँ पामीरियन रीजन में, चाहे आप अफगानिस्तान जाइए, चाइना जाइए, ईरान जाए या पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ाजात में आप आए, इस तरह के आपको ये डिज़ाइन मिलेगा। ये सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं है, इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ हिस्ट्री है। इस पूरे इस घर के हर पोर्शन में जो है ना हिस्ट्री है। मैं आपको शुरू करूँगा इन सतून से। आप में से बहुत सारे शिया थॉट से बिलोंग करते होंगे। 7 years हमारी बिलीफ है 7 years में, और उसके अंदर हमारा बिलीफ 5 pillars है, जो इस्लाम की 5 pillars है। ये जो 5 आपको मेन पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 5 pillars ऑफ इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और पंजतन का पाक को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ये जो 5 layers है, 5 steps हैं, 1 2 3 4 5 इन सेंटर में जो आपको आप इसको वेंटिलेटर कहे या रोशनदान कहे, लेकिन इसका थीम कॉन्सेप्ट ये है कि ये नूर को रिप्रेजेंट करता है और रोशनी जो है ना नूर को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी 5 pillars ऑफ इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। फिर आप पिलर्स को देखेंगे तो मेन जो ये 3 पिलर है, क्योंकि हमने इसको रिनोवेट किया, 900 years ओल्ड है और ये डिमोलिश की तरफ जा रहा था, तो इस साल हमने इसको रिनोवेट किया। ये दो पिलर्स है, ये कॉपीज हैं। और ये जो 3 पिलर्स है, तीनों पिलर्स के आपके साथ जो है ना डिज़ाइनर्स भी होंगे, आर्टिस्ट भी होंगे, पेंटर्स भी होंगे, ठीक है। हर एक का डिज़ाइन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है जी, ठीक है। और हर एक में जो है ना
वो किसी न किसी रिलीजन को वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल से। आपको स्टोपा का सिंबल नज़र आएगा, आपको बुद्धा का वो नज़र आएगा। ये देखिए, ये बुद्धिज़्म सिंबल जो है ना, आपको बुद्धिज़्म की तरफ लेके जाता है। मीनार होता है स्तूपा। जी जी जी। ये फिर आपके बुद्धा बुद्धिज़्म की तरफ है। फिर हिंदुइज्म में आपको सर्कल, हिंदुइज्म के अंदर जो है ना, आप उसको जब थॉरली स्टडी करेंगे तो सर्कल जो है ना हिंदुइज्म में एक इम्पोर्टेंट साइन है। उनके हर मोटिव में यूज इस्तेमाल होता है वो। जी 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 जी। और ये देखिए सर्कल, इसको गौर से देखें तो ये सारे सर्कल्स हैं। फिर आपको यहाँ देखें तो ये क्रिश्चियनिटी के अंदर आपको इस तरह के सिंबल्स नजर आएंगे। कितना साल है? 35 years old, 25 years old. How old is he? अभी पास हुआ था। How old is he? This is what I want. Please. क्या बात है? शापर में डालना, शापर में आज के लिए बोल रहे हैं। बहुत खाया इसके अंदर में Heaven made in paradise. Heaven made in paradise. ओए कौन? है देखो, दिखाने तुम पहन के यार। इस ब्लू वाले में अपने पास सीधे में पड़े हैं ये ना तेरे काम कर रहा है, खबर कर लो। मैं सुबह नमाज के टाइम में उठता था, ऊपर ये नहीं है ये चौटी, वहाँ तक ऐसा घूम के वापस आता था। ईगल नेस्ट वाली? हाँ हाँ। अच्छा, रोज का? रोज का कभी रोज नहीं, कभी कभी। उस वक्त शिकार करते थे ना। शिकार किस चीज का? ये चकोर, रम चकोर, चकोर। हाँ चकोर सही है। वो लीगल था उसका हैंड करना, कोई पुलिस कुछ नहीं बोलता था, वो लीगल था। नहीं उस वक्त रोड ही नहीं था ना। अच्छा अच्छा। ये लोग यहाँ से गिलगित भी पैदल जाते थे। सही है। ये उस टाइम की बातें कर रहे हैं। वो भी वजन 25-30 से लेकर 40 kg आप उठा लेते थे आराम से। तो मेरी तस्वीर खींच। मैं तस्वीरें नहीं खींचता ये। funds, and as you can see, a growing list of male youth as well. So this is something that would be a wonderful exchange that we could build upon. That's great. So what kind of digital skills you are providing to the students? Everything from coding, e-commerce to AI. We are also, there would have been lots of different things. Most importantly is vocational skills for jobs as well as international opportunities.
वन ऑफ सक्सेसफुल कैंपस हम कह सकते हैं कि क्रॉस एक पाकिस्तान 21 में है, कैंपस हैं विजन डिस्ट्रिक्ट में है और एक यामर यामर में में। पूरे पाकिस्तान में 21 खुले थे ना, उनमें से एक हुंजा कैंपस भी है। हाँ, और आई होप कि आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपके has been on the economic growth. Economic growth, yes. The other two parts have been majorly ignored. Ignored, of course. स्पेशली इन्वायरमेंटल जो पार्ट है उसको तो इग्नोर ही किया गया है। आप देख सकते हैं कि वी हैव वन प्लेन कंस्ट्रक्शन अक्रॉस हुंजा, वेरी सून हुंजा विल बिकम लाइक मरी एंड लाइक दैट वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेज फॉर एनर्जी, like for hydel energy sources, but we don't have electricity. Like every hotel is using Solar. generator, not solar, generators. Generator. And like generators causing pollution, and we are depleting our environment. And you can see the implications of climate change in Huza, like mega flooding. So one of our companies is Ladies Fun Energy, and we have women solarized rooftops. We'd like to come with a group of women and solarize all your Hunza places. Oh, great, that's great. So collaborate with us. Is this university solarized as yet? No. No. So please talk to us and we can help. Maybe we can talk to Aga Khan Foundation or somewhere Yes, and get the whole building solarized for you. Okay, wouldn't that be lovely? We have electricity problems. Yeah, so and we are still using the generators here. You know, from my schooling. Yeah. So my father was a chemical engineer who lived there. So Students of which subject you are going to opt? We have opted for marketing with a combination of supply chain and sales. So we can इधर देखो, 2.0 And they are some of the most talented, most exciting, best photographers, Urdu poet, sketch artists, fiction writers, so forth, chef. And we'd like you to mingle and get to know each other, and they want to learn about student life here. And inshallah in December, we're going to be choosing 3 students to bring to December to Karachi for a similar all-expense paid trip where you'll learn all about the coast in Karachi. So it's a deep honor for us, and we are so grateful to this university here and the amazing faculty who coordinated everything. We just signed an MOU, and please all get to know each other and get to know each other well. Thank you. reduce hard sales first and then आप लोग भी कर सकते हैं. We can have a small ice breaking activity. यहाँ पे हम लोग कुछ एक दूसरे से थोड़े weird क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं just to get comfortable and all. And then आप लोग हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं. हम लोग आपके बारे में बहुत इंटरेस्टेड हैं जानने में कि आप लोग की कैंपस लाइफ कैसी है या यहाँ पे लोकल लाइफ किस तरह की है, तो हम उसके बारे में थोड़ा पूछेंगे. अरे नहीं, मैंने खुद गलत आपकी दोनों बातें सच मेरी दोनों बातें सच है वैसे. कराची में एक दिन जेल भी जा चुके हैं. और आप लोग की जो स्कर्दू वाला कैंपस है और आप लोग का जो क्यों गए, सवाल आया क्यों गए कर गया था भाई यार मैं एक जगह पे था, सही है, मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, सही है, तो वहाँ किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ के कुछ और क्या काम वाम चल रहे हैं. हम लोग बस बैठे हुए थे, दूसरा चल कह रहे थे, तो उसके बाद वहाँ रेड पड़ गई और जो रेंजर्स होते हैं, रेंजर्स जो आर्मी की जो फोर्स है, तो उन लोगों ने आके उधर रेड मारी. तो जब रेड मारी तो फिर उन्हें सबको उठा के लेके चले गए. तो मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, हमने फिर पूरी रात जेल में काटी जब तक सब. रीजन मेरा हॉस्पिटैलिटी में जो मेरा ईयर है वो फाइनल है, मैं 7th सेमेस्टर का हूँ. पैशन मेरा ये है कि मैं CSS करना चाहती हूँ फ्यूचर. जैसे ये मेरा स्टडीज़ ख़त्म होंगे उसके बाद. और एंड दूसरी बात ये है कि और उनको जो है सर्टिफाइड ट्रेनिंग करवाते हैं और उनको फिर जो है सोलराइजेशन की तरफ उनको रूफटॉप पे पहले तो ट्रेनिंग दी जाती है और फिर हम लोग उनको ऑन फील्ड ऑन साइट भेजते हैं जब ये करवा रहे होते हैं ना.
उसको बेसिक बैकग्राउंड एजुकेशन की क्या होनी चाहिए? क्या कोई भी फीमेल इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट कर सकती है? इंजीनियर्स के लिए ये बेसिकली हम लोग उसमें सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से हमने व्हाट्स यूनिक अबाउट यू दैट फॉर एग्जांपल आई वुड हायर यू, राइट? फॉर एग्जांपल लाइक मी एंड फरजान वी रन अ डिजिटल एजेंसी। उसके अंदर व्हाट अट्रैक्ट्स अस इज हाउ अ पर्सन मार्केट्स देमसेल्फ। सही है? अगर आप और बेसिकली इसमें कुछ चेंजेस नहीं, क्योंकि मैंने आपको पता होगा इसमें मैंने ईगल वगैरह का आपको पहले जो लोगो आपको मैंने सेंड किया नहीं हमें शक है क्या आप ये कलर ग्रेडिंग बताओ कह रही हैं कि कलर ग्रेडिंग मैटर करती है। आपका जो मेंटोर है उन्होंने सही बोला कि 2 से 3 कलर्स हो, क्योंकि वो फिर आंखों को ना वो अट्रैक्ट नहीं करती है वो चीज ना। इज व्हाट आर अदर्स सीइंग अबाउट यू। सही है? अगर आपने ये काम बना भी दिया, सही है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये हजारों लोग कर रहे हैं, राइट? Then where do you come in, right? A major part of it is, for example, if you're using Instagram, Facebook and all of that, say just posting your work is not it now, right? या फिर if you're the best designer ever, then posting your work would be enough. But if you're not the best in the world, say, then you have to add more things to it. A major part of doing anything is being authentic to who you are. You're a part of this beautiful part of the world, beautiful part of Pakistan. Why don't you use that, right? आपकी हर बंदे की एक आइडेंटिटी है। योर आइडेंटिटी इज बीइंग अ पार्ट ऑफ हुंजा, राइट? मेरी आइडेंटिटी बीइंग अ पार्ट ऑफ कराची, और मेरे सारे काम में उसके एलिमेंट्स दिख रहे होते हैं, राइट? तो अगर कोई आपको हायर करता है, बी यूनिक देन ऑल द अदर पीपल डूइंग द सेम वर्क। तो ऐड पार्ट्स ऑफ योर आइडेंटिटी इनटू योर वर्क। अगर आपने ऐड एलिमेंट्स ऑफ हुंजा, ऐड एलिमेंट्स ऑफ व्हाट योर इंटरेस्ट आर, ऐड एलिमेंट्स ऑफ द प्लेस अराउंड यू, तो उसके अंदर फिर ये होगा कि you'll be unique, you'll be selling something unique, not something that everyone else can. And sometimes people feel कि यार हम अपनी जो आइडेंटिटी होती है ना उसमें वो और वो इतनी यूनिक लगती है ना रेस्ट ऑफ स्टूडेंट से, तो वो अपने आप में एक वो छा जाता है। And one thing that I would so your research through Pinterest, Behance, all of this stuff should not stop. And then second part आता है कि आप जज करने वाली नहीं हो कि आपका काम अच्छा है या बुरा है। आधे से ज़्यादा हम में से लोग अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे काम डालते नहीं कि यार ये डालूंगा तो 4 बंदे बोलेंगे अच्छा नहीं लगता। भाई कौन है वो 4 लोग? बाहर में जाएं, समझिए आप बात। तो वेदर इट्स गुड और बैड और इवन एज बेसिक एज इट गेट्स, पोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन, राइट? बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, पहली बात ओके सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? नाउ यू नो व्हाट यू प्लेइंग अराउंड विद एंड यू स्टार्ट टू फॉलो योर ओन जर्नी। मैंने यहाँ से शुरू किया है। वो पहले मेरे कलर पैलेट्स ही होते थे, अब मैं इन कलर पैलेट्स में खेलती हूँ। पहले मैं वेक्टर डिजाइन में खेल रही थी, अब मैं 3D उसमें खेल रही हूँ। एवरी माइनर एलिमेंट कम्स इनटू प्ले। आई गिव एग्जांपल, वी इन कराची, राइट? एंड वी लिव इन दिस वेरी। आपको वो चैनल्स, मॉडर्न चैनल हंट करने पड़ेंगे जिससे आप अपनी जो भी नीश जिसमें काम करें वो आप सेल आउट कर सकें। हमारे पास बेस्ट है लिंक्डइन मोस्टली, मतलब जो भी टैलेंटेड हमारे यहाँ से निकल रहे हैं उनको लिंक्डइन के बारे में पता ही नहीं है। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू आप अपने परचेजर्स को आप हंट कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग BBA वाले बेहतर बता सकते हैं कि मार्केटिंग की मतलब एक डिज़ाइनर या फिर रिमोट वर्कर के लिए क्या रोल अदा करती है। तो इस बारे में आप अगर बोलना चाहते हैं। लिंक्डइन पे जहाँ तक हमने बात करी ना, लिंक्डइन पे आप एक और चीज़ ये कर सकते हैं, जैसे हम लोग अपनी जॉब पे करते हैं, हम लोग कंपनी के प्रपोजल शेयर करते हैं। सारे जो लोकल बिजनेस हैं यहाँ के वो इंस्टाग्राम पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको अगर आप डायरेक्ट DM करके भी अपने पोर्टफोलियोज जैसे आपने बताया वो आप शेयर भी करें ना, तो वो लोग वेट में होते हैं, मतलब लिटरली कि उनको अगर कोई खुद से ऑफर करे, क्योंकि एक आप एजेंसी को अप्रोच करते हो और एक आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हो, तो वो हर कंपनी जो होती है वो प्रेफर करती है कि इंडिविजुअल वो अपनी टीम बनाए। तो आप तरह के जो लोग होते हैं जो रिमोट लेवल पे अपना इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। हाँ,
सही होने वाला नहीं है। In Karachi, who are top photographer, Urdu poet, writer, documentary filmmaker, interviewer, content creator. So I'm going to ask Emmett Diaz to come here and take control. He's from IBA, he's from IBA, English Javis, First of all, thank you everyone. Karachi, and I'm a 4th year student. हम लोग वहाँ से BBA कर रहे हैं, मार्केटिंग में मेजर्स कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट Huzaifah is from जिससे रिकग्नाइज्ड है और एसोसिएट डिग्री तो इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस तरह हमारे साथ हुई है। एक चाइनीज़ वोकेशनल कॉलेज है, उसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि डिग्री के बाद एक साल तो इस कमरों को हमें ऐसा क्लासरूम यूटिलाइज करना है। तो लाइक क्लास छोटा है लेकिन अदर फैसिलिटीज अवेलेबल है, लाइक LED वगैरह और मोनीटर्स वगैरह हैं। उसके साथ आप कह सकते हैं इंटरनेट वगैरह, लाइक ये चीज़ें अवेलेबल है। कैंपस में इंटरनेट, तो ये एक रूम ही है। तो अदर देन दिस स्टूडेंट अफेयर की चीज़ें और वो सारी चीज़ें यहाँ पर और उसी के बाद इसी कैंपस के अंदर इसी बिल्डिंग के अंदर हमने लैब्स भी मैनेज किया है। इंस्टॉल जब जाते हैं ना वोकेशनल कॉलेज में तो उसके लिए जिसके चाइनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट होता है वो पास करना होता है, तो फिर तो उसकी भी ट्रेनिंग यही सही कोर्स सारे उनकी एप्लीकेशन है कोई चाइनीज़ और यहाँ पर मैंने बताया कि तो ये हमारे PD का ऑफिस था, ये अभी तो साइड पे होता है, काम बहुत चल रहा है साइड पे ऑफिस में क्लास वैसे भी आपकी क्लासेस में जो है वो 15 to 20 और स्टूडेंट्स भी 15, 20, 25। जब आपके 25 से जब बढ़ जाती है ना स्ट्रेंथ, तो हम इस हॉल को यूटिलाइज करें। इसमें के करीब इसमें 1,500। वैसे पूरे जो कैंपस की कैपेसिटी स्टूडेंट की वो अभी एडमिशन ये अराउंड 200 तक है। 200 तक है। 200 तक क्योंकि जो बैच आर्कियोलॉजी के चल रहे हैं 2-3 बैच हमारे करते तो मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है कि हमारे यहाँ पर कितनी सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। आर्कियोलॉजी पढ़ी है, इसकी कोई रीज़न है, इसकी कोई वजह क्या बाहरी देशों में इसीलिए ज़्यादा थे और यहाँ के मतलब बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, उनको हमने अभी प्रिजर्व करना है। और आप सबको वेलकम करूँ मैं। Can you please explain to us जोर से बोलो what is बेटा, the जोर से difference between the terrain of Grade 2, the terrain of Nanga? जो पूछ रही है कि K2 के ऐसा है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, हम इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में से बाहर अभी तक नहीं गए।
सब्जेक्ट्स कौन से पढ़े हैं अभी तक? चलो सब्जेक्ट से बात माइनिंग बताओ। के बेसिक्स पढ़े हैं। वो बताओ ना। सर्वे माइनिंग में आपने पढ़े हैं कि माइनिंग कैसे करते ये तो जनरली भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी। हिमालय हिंदुकुश कराक्रम ये रेंजेस का बताओ थोड़ा सा। इसके अलावा अभी तक कोई सीनियर स्टूडेंट नहीं है डिप्लोमा का? ये मेट्रिक के बाद सर ये कह रहे हैं कि ब्लास्टिंग में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है वो पढ़ाएंगे। बारूद ग्रेजुएट करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं कंफर्टेबल नहीं था। उस वक्त यहाँ पे आर्कियोलॉजी नहीं थी, मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक था। बाद में मुझे पता चला हिस्ट्री पढ़ा, तो उस वक्त कराची में जब हम पढ़ रहे थे हमें ऐसे इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ किसी सीनियर स्टूडेंट की तरफ से नहीं मिला था। तो उसके बारे में बस यहाँ पे आया तो हाँ, कराची में इस तरह की क्यों नहीं होती? कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ा था आपने? मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कराची में इस तरह की प्रोग्राम नहीं होते, एक्टिविटीज़ नहीं होते थे। इनका कहने का मतलब ये है कि जब ये कराची में तो हम लोग को भी अपने कनेक्शंस बिल्ड करने पड़ते हैं। अगर हम यहाँ पर भी हैं, आप लोग से कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवानी है। तो हर जगह पे, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने मतलब की चीज़ें कहीं भी निकलवा सकते हैं। ये बात आप हमसे चलें। थैंक यू सो मच। बहुत फॉलो करेंगे। हमारे You guys go. I'll become one more. Yeah, one more. यार आप जितना काम करो वही बात है। हर एक इंस्टाग्राम पे डालता जाता हूँ। You try the Spanish started at it? One hot, one cold. Okay, let's go, guys. Come on. ये अंदर ना इंचरी उसी विंजो अंदर ना गुलाब ना That is why it is called Palace on the Rock. No, Sugar Fort this name, but it is called Phongkar. This is local language which means Palace on the Rock. It is built by King Hassan Khan Amacha in 1634 centuries, 400 years ago. So with the passage of time, so the condition fort became worse. That is why, madam, our recently Raja Azam Khan is living houses across the road. He is 38 dynasty existing. He is the minister and politician of Gilgit-Baltistan region. So there, it's food donated to people of Baltistan valleys. Madam, gifted to community of Baltistan valleys. In 1999, Aga Khan Cultural Services to run. कौन से पूरे इंग्लिश में? वो no, it's got Sorry? What year was this made? 2004. No, It's Shigar original word Fort. here. 1634. 1634. Yeah, 400 years. And it's a royal fort This because is a it. king made it. What has happened to the royal family of Shigar? हाँ इनको भी बुलाएं देखने Happened to the royal family? The king of sugar very big then. They claims to have ruled for sugar 33 generations and he was the 28th. कैसे निकलोगे तुम? आओ मारो। The owner of the whole thing. Me and your mom. Me and your mom. A little bit about yourself and introduce. मेरा नाम राजा है फ्रॉम शिगर। ये हमारे फोर्ट फादर्स का पैलेस था, तो हमने ये एक्चुअली डोनेट किया हमारी कम्युनिटी को, और हमारी कम्युनिटी और सरीना मिलकर इसको चला रहे हैं। After family was the royal family that built this fort. So do you have any family stories you can share with us about हमारा origins? ये हमारा
हमारे जो 16 जो फोर्ट फादर्स थे, राजा हसन खान अमाचा 60 forefathers. What year? 1632 1632. तो उसने इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। पहले it was your family home, and do you remember इसमें तो हमारी पूरी लाइफ तुम क्यों नहीं करवाता कोई? क्यों मुंह पे टेप लगा के बांध दो।